So, good morning, ladies and gentlemen. My name is Devesh Pratap Singh, and I welcome you all in Defense Toppers. So, we are gonna solve the mixed questions of PYQs as well as some predicted questions of the topic President. All right. So, yeah, stay with us. We are gonna complete this topic through the questions only. Okay. I will try to add all the points, topics, anything that I can recall right now while solving the questions. So, yeah, stay with me. By the way, this is about our course, the foundation batches for CDS, ND, AFCAT, CAPF exam, and the SSB for 2023 is going to commence from 26th September. The offer is this 2,999 and it is valid till 26th. ठीक है? So बढ़ते हैं without wasting any time. चलो मेरी फोटो देख लो भाई. This is me. This is Pandey sir for maths, for GS, and he is for MNS and science. And by the way, the Avinash Singh, GC Avinash Singh, he is ex NDA cadet. He had to leave NDA because of some medical issues in the last term only. And he is very great, very efficient in terms of mentoring for the SSB course. And he has been recommended twice, and he is a gem. So you will know when you'll meet him. All right, so without wasting any time, let's go to the next question. Yeah. So प्रेसिडेंट का टॉपिक हमको करना है और हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. प्रेसिडेंट. नो पर्सन has occupied the office for more than 2 complete terms. Every president has served the full term of office, which is very true. First is very true. हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत. First is wrong. Every president has served the full term of office. No भाई. Dr. Hamid Zakir Hussain, sorry, not Hamid, Dr. Zakir Hussain and Fakhruddin Ali, ठीक है, they both died during their tenure of being the president. So of course these are not going. Second option is very wrong. ठीक है, so we'll go with only one. All right. Consider the following statements with regard to the constitutional provisions about the election of president. There shall be parity between the states as a whole and the union at the election of the president. The president's election is to be held in accordance with the pass the post system, FPTP कहते हैं इसको भाई. ठीक है. The elections are held by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot. देखो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की मैं पहले कुछ बात करता हूँ. ठीक है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन की हम बात करते हैं. प्रेसिडेंट जो है इसके इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट दी नॉमिनेटेड. वो पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है. और स्टेट असेंबलीज के, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके भी इलेक्टेड बंदे पार्टिसिपेट करते हैं. यानी कि एमएलसीज यानी मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. तो ऐसे याद रखना. बाय द वे, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. ठीक है. एज वेल एज प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में. मतलब आप ऐसे याद रखना कि जो नॉमिनेटेड लोग हैं बड़े दल बदलू हैं, इनको प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है, ये बंदे जो हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. लेकिन जब हटाने की बारी आएगी प्रेसिडेंट को तो कूद कूद के आगे आ जाएंगे. ठीक है. और जो वोटिंग मेथड है ये होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इसका मुझे कमेंट सेक्शन में भाई बताओ कि सेम मेथड से किसका इलेक्शन हुआ था. चलो मैं आपको बता रहा हूं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये बाय द वे पीवाईक्यू है सीडीएस का. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारा क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उसमें सेम मेथड से वोटिंग हुई. ठीक है. तो अब हम क्वेश्चन पे जरा ध्यान देते हैं. अरे क्वेश्चन काफी पीछे चला गया भाई, सॉरी गाइस. सो या ठीक है. सारी रात. हाँ, देयर शैल बी पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल. बिल्कुल सही. The president election is to be held in accordance with the first past the post system is very wrong. क्या बताया मैंने अभी? सिंगल ट्रांसफरेबल
वोटिंग बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, 2 रॉन्ग हो गया, तो चलो ये ऑप्शन भी गए 1 एंड 3। द इलेक्शन आर हेल्ड बाय मींस ऑफ सिंगल, सेम बात बोल दी, एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है, एकदम इसमें ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Any Indian in India, which category of person are eligible for the office of president? तो बिल्कुल सही भाई, 35 साल एज चाहिए, 35 years of age, as well as लोकसभा के लिए he should be eligible, ठीक है, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए उसे, ठीक है। तो एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बिल्कुल गलत, सेकंड इज वेरी राइट। फर्स्ट पॉइंट का मतलब, कल को हमारे जो दुबे सर हैं साइंस के, वो चाइना जाते हैं और वहाँ शादी करते हैं, और जो उनका बेटा होगा, ठीक है, ही इज, जो भी उनका बेटा मान लो कोई चाइनीज चिंकी है, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नो मैटर ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भाई पापा मतलब उसके इंडियन है, सो ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। काफी वाहियात एग्जाम्पल दिया हमने, ठीक। A sitting governor of any state and a minister of any state are not qualified to contest presidential election, ठीक है, they are deemed to hold office of profit। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये तो एकदम क्लियर है कि आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना होता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कोई डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट आप हेड ना कर रहे हो। तो भाई हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे गवर्नर और ये कुछ मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? नल्ले होते हैं, बेरोजगार होते हैं। सो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके अंडर में नहीं आता। बाय द वे, दे कैन कंटेस्ट इलेक्शंस अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड भी कर रहा है कोई मिनिस्टर, ये याद रखना। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दे कैन कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक है। रीजन, दे आर डीम टू होल्ड ऑफिस, भाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके अंडर में नहीं आता, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं। Before entering upon his office, the president has to make and subscribe to an oath or affirmation. This oath is administered to the president by, क्या ही करना है इसे, एफकेट एसएससी का क्वेश्चन पूछा है। बाय द वे मैं बता दूं, सीडीएस 2019 सेकेंड पेपर का पीवाईक्यू है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। All executive actions of the government of India are formally taken in his name. Consider the following with his preference, with his reference. By the way, मैं आपको पहले ही बता दूं, President is the executive head। ये 4 बारी 4 टाइम्स पूछा है सीडीएस में, घुमा फिरा के। एग्जीक्यूटिव, एक क्वेश्चन है इसमें, इस पीपीटी में, इज द एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है भाई? हमारे प्रेसिडेंट साहब। मोदी जी नहीं है हमारे एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। ऑल्दो डी फैक्टो यही है, डी फैक्टो में हम बाद में आएंगे, ठीक है। सो जो एग्जीक्यूटिव हेड है, नाम का हेड जो भी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ही हैं, ठीक है। ही कैन मेक रूल्स specifying the manner in which the order and other instruments made and executed in his name shall be authenticated is very correct। घुमा भाई काफी लंबी लंबी बातें कर रहा है, सही है एकदम। He can make rules for more convenient transaction of business of the union government and for the allocation of the said business among the ministers, एकदम सही, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लंबी लंबी। देखो यूपीएससी में कोई भी भाई क्वेश्चन मतलब पेपर हो, इसमें अगर अच्छी अच्छी लंबी लंबी बातें करे हमेशा सही होता है 99% ऑफ द टाइम। बाय द वे इट इज ट्रू। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, एकदम सही है, ठीक है। 1, 2 and 3 ऑप्शन डी सही। बाय द वे किस आर्टिकल, चलो मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 75 के बी या सी में पार्ट में भाई मेंशन्ड है दैट पीएम विथ, नहीं सॉरी, आर्टिकल 74 में भाई मेंशन्ड है, आर्टिकल 74 में एकदम मेंशन्ड है क्लियर कि पीएम विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is going to प्रोवाइड एड
टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 याद करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आर्टिकल 74, ठीक है। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। The governor can reserve certain types of bills passed by the state legislature for the consideration of the president and the president enjoys absolute veto over them। चलो मैं यहाँ से आपको पहले वीटो की बात कर दूँ। वीटो की बात करता हूँ। वीटो पावर्स प्रेसिडेंट की वो पावर्स है कि वो कोई किसी भी बिल को फाड़ फूड़ के या मैनिपुलेट करके वापस भेज सकता है या घुमा सकता है, कुछ भी करता है, मतलब कर सकता है कोई भी बिल अगर पास हुआ हो, ठीक है। तो वीटो पावर्स हमारे पास 3 तरीके की है, एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा पॉकेट वीटो, तीसरा सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो जो है इसमें क्या करता है, वो किसी भी बिल को एकदम मना कर देगा कि मैं इसको पास नहीं करने। असेंट, देखो कोई भी बिल किसी भी हाउस से पास हुआ उसे एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट को असेंट मतलब टिक करना होगा, साइन करना होगा कि हाँ भाई मैं इस बिल को वेरीफाई करता हूं, आई रेटिफाई दिस बिल एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एक्ट नाउ। तो ये प्रेजेंट करता है। तो एब्सोल्यूट वीटो में ही कैन डिनाई दैट। बाय द वे वीटो पावर्स किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 111 में, ठीक है। पॉकेट वीटो, सस्पेंडिव वीटो, एक वीटो और है क्वालिफाइड वीटो, लेकिन वो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, इट इज देयर विद द यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ। तो ये भी याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तीनों तो पूछा हुआ है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये जो पॉकेट वीटो है, इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट मनी बिल। मनी बिल के केस में he cannot use this pocket veto because he is the one who recommends the initiation of money bill, ठीक है। The governor can reserve certain types of bills, yes, गवर्नर को अगर लगता है, ठीक है, तो वो कुछ बिल्स पे वीटो पावर्स, अच्छा हाँ, गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो होता है और सस्पेंसिव वीटो होता है। एब्सोल्यूट वीटो होता है एंड सस्पेंसिव वीटो होता है, पॉकेट वीटो नहीं होता, ये भी याद रखना, ठीक है। द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास बाय, बिल्कुल गवर्नर कुछ बिल्स को रिजर्व कर सकता है फॉर प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट भाई देखो ये कैसा कैसा बिल पास कर रहे हैं असेंबलीज वाले, ठीक है, स्टेट्स वाले, ठीक है, ये बिल काम लायक है कि नहीं, सही है कि नहीं, आप देखो इसको, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकता है। अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 201 के तहत गवर्नर रिजर्व कर सकता है। और प्रेसिडेंट बिल्कुल एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है और सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो तीनों वीटो यूज कर सकता है, ठीक है। By the way, second, the president cannot direct the states to reserve money bills and other financial bills passed by the state legislature in any circumstances for the consideration. It is the prerogative of the governor. President cannot, बिल्कुल भाई प्रेसिडेंट नहीं डायरेक्ट कर सकता। इसका होगा क्या आंसर, 1 ओनली, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट पे। The president's address to the joint sitting of parliament at the beginning of the budget session every year is a parliamentary convention, is a legal requirement, constitutional requirement, is very correct, ठीक है। आर्टिकल किस में मेंशन, आर्टिकल 87 में मेंशनड है कि प्रेसिडेंट is going to address the parliament at the start of every session, हर एक सेशन के और बजट के भी स्टार्टिंग में he is going to address the parliament, ठीक है। बाय द वे ये CDS 2 2020 में आया था, यस, घुमा फिरा के, लाइक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टाइप वाला क्वेश्चन था, उसमें इट वाज आस्क्ड, ठीक है। सो बाय द वे ये जॉइंट सिटिंग की वो बात नहीं कर रहा। बाय द वे अच्छा चलो यहाँ पे बताओ किस आर्टिकल में भाई मेंशन्ड है, आर्टिकल 108 में मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट कैन समन मतलब बुलाना द जॉइंट सिटिंग एंड ऑन एनी डेडलॉक, ठीक है। मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं आती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं आती। इज इट क्लियर, ठीक है। किससे पूछ रहा हूं मैं, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। देखो हम ये मैं आपको सिखाता हूं। आर्टिकल 123 जो आर्टिकल 123 है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट कैन पास सम लॉ। देखो लॉ बनाना प्रेसिडेंट का काम नहीं है, वो किसका काम है, वो काम है लोकसभा
और राज्यसभा का काम है। ठीक है, ये लोग बिल पास करेंगे, ये लोग कानून बनाएंगे, प्रेसिडेंट बस पढ़ के असेंट दे देगा। ठीक है, तो आर्टिकल 123 में ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और हमें जरूरत है, देन ही कैन पास एनी लॉ, ही कैन पास एनी लॉ, एनी ऑर्डिनेंस। उसी को बोलते हैं इमरजेंसी बिल। जो वो पास करता है, जो कानून पास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये प्रेसिडेंट पास कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत, लेकिन ही कैन नॉट पास the session, he cannot pass the ordinance when the parliament are in session. But अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, then he can pass again, चाहे पार्लियामेंट सेशन में हो चाहे ना हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। ठीक है, आर्टिकल 123 एकदम से। एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेस, अच्छा बाय द वे, ये जो ऑर्डिनेंस पावर है ये भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब खुद की पावर नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी पीएम की एडवाइस पे ही वो इसको ऑर्डिनेंसेस को पास कर सकता है। ठीक है, क्लियर? एन ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन इज वैलिड इफ अप्रूव्ड बाय द, नहीं भाई, कोई मतलब नहीं, इसका कोई तुक ही नहीं है। एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड टू अमेंड, बिल्कुल सही, एकदम सही, इसका है ओनली टू। एक ऑर्डिनेंस से आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आर्टिकल 368 के तहत आता है, वी कैन नॉट यूज द ऑर्डिनेंस पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस। देखो मैं सिंपल भाई बता दूं, प्रेसिडेंट में हमने क्या देखा कि लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट में ये जाए तेल लें, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के बंदे ही क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के बंदे पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों, यानी कि टोटल एमपीज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो बोथ द हाउसेस टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनलाइक द वाइस प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा अलोन। यहां तक तो स्टेटमेंट एकदम सही था, यहां से गड़बड़ हो गया। अनलाइक द प्रेसिडेंट, सॉरी, अनलाइक द वाइस प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा अलोन। बट वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होगा। फ्रॉम विच हाउस? राज्यसभा सबसे पहले, उसके बाद लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से जो रेजोल्यूशन को पास कर देंगे और ही इज रिमूव्ड। ठीक है, स्टेट LA डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अनलाइक दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या बोला? स्टेट लेजिस्लेशन डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अनलाइक, एकदम सही। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेती है, तो इसका भी क्या है? ओनली 2। ठीक है, consider the following statements with reference to article 1 ordinance power पे आ गया। The union executive can promulgate ordinances only from the subjects in union। नहीं भाई, प्रेसिडेंट जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, रेसिडुअरी लिस्ट में, इन चारों लिस्ट में जो भी चीजें मेंशन्ड है उसमें कर सकता है ऑर्डिनेंस पावर यूज। ठीक है, सो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। And all ordinance made by the state executive are null and void if made without the prior recommendation of the president. All ordinance made by the state executives are null and void। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है recommend, ये एकदम गलत स्टेटमेंट लग रहा है मेरे को, तो इसका तो डी होना चाहिए, बिकॉज जो क्या कहते हैं इसमें रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं होती। अगर गवर्नर के पास भी है सेम, अच्छा प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में है, इसके पास 213 में है, गवर्नर के पास। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस और सिलेक्शन टू द गवर्नर्स ऑफिस। ठीक है, क्या बताना? हाँ भाई हमको सही। द गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट, बिल्कुल भाई वो भाई कर सकता है। द गवर्नर कैन बी अ गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स एज वेल, ये याद रखना। ठीक है, द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर कंसल्टिंग द
ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, ठीक है, सीएम से कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट द गवर्नर्स आर व्हाट, दे आर द स्पाई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, स्पाई होते हैं, ठीक है। अ सर्विंग गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट और गवर्नर पार्लियामेंट या स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है उसका पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैं बी ओनली, बी कैसे होगा इसका, अच्छा 3 ओनली, यस ओनली 3। पीवाई क्यूज आगे चलो। द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। यहां तक भी सही था, यहां से दिल तोड़ दिया स्टेटमेंट ने। क्यों? क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन जो है ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि चेयरमैन इज द एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। तुम सबके सब गलत हो, मैं भी यहां पर गलत हूं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। याद रखना, पेपर में कभी भी पूछे अगर आए कि चेयरमैन मतलब कभी जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, चेयरमैन इज नॉट द एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होता है, चेयरमैन इलेक्ट या रिमूव नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट रिमूव होगा ऑटोमेटिकली, चेयरमैन भी की जो ऑफिस होगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है। इट इज क्लियर। और बाय द वे वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 0 रुपीज है, चेयरमैन की सैलरी उठाता है वो। ये भी पीवाईक्यू है किसका, सीडीएस का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, यहां तक तो सही है, दिल मत तोड़ना भाई। They have the right to vote in the election of the vice president, एकदम सही, एकदम सही। सेकंड स्टेटमेंट ने दिल नहीं तोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The president of which of the following, में कहां पढ़ रहा हूं, which of the following statement in the context of structure of the parliament is या are correct? The Parliament of India consists of the president। अरे यार क्या बच्चा लोग क्वेश्चन पूछ दिए, एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए का पीवाईक्यू है, ठीक है। The President of India is directly elected by electoral college consisting of the elected members of both the houses of the parliament only। बिल्कुल सही है। ऑल द स्टेटमेंट 2 थोड़ा सा अधूरा है, ओनली लगा दिया, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है यहाँ पे, मतलब एलए को भी इनको मेंशन करना था, असेंबलीज को, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक अब आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर है ना तुम्हारा? ऑल्दो इसका आंसर डी भी हो सकता है, क्योंकि ओनली लगा दिया तो आई थिंक इसका डी ही करो, क्योंकि यहाँ पे क्या मिसिंग है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, इनके इलेक्टेड मेंबर्स मिसिंग, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल मेक्स रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द, ये पीवाईक्यू, ये सब सीडीएस के पीवाईक्यू हमने स्टार्टिंग में किया था। All executive actions of the India shall be expressed to be taken in the name of Prime Minister। पकड़े गए सबके सब यहाँ पे, गलत। सेकंड स्टेटमेंट ने दिल तोड़ दिया भाई मेरा, ठीक है। मोदी जी के नाम पे नहीं होता कोई भी एक्शन, कोई भी काम। हमारे मुर्मू मैम जो है प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू मैम के अंडर में ही, उनके नेम पे ये एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं, मोदी जी के नाम पे नहीं लिए जाते। हर जगह मोदी जी मोदी जी। चलो क्या बताना है, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एकदम सही। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर, एकदम गलत, एकदम गलत। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाई एमपीज का जो वोट होता है वो एकदम बराबर होता है, लेकिन जो लोकसभा होती है, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं उसमें वैल्यू डिफर करती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो भी अलग अलग होती है, और सबसे भाई पावरफुल कहाँ की है, यूपी की है। इसीलिए मोदी जी, कांग्रेस, राहुल गांधी सब यूपी के पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि इसका अगर इलेक्शन जीत डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ऑप्शन नंबर ए ओनली इज वेरी करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच
वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायर्स एंड डिसाइड्स इन केस ऑफ डाउट्स। देखो भाई, आर्टिकल 71 एकदम स्ट्रेट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इंटरफेयर इन द डिस्प्यूट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत इनका इलेक्शन करवाती है। इसका आंसर क्या है भाई? ऑप्शन ए लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। ठीक है। द जुडिशियल पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट while appointing the judges of the concerned state high court is very correct। जब प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है, अपॉइंट करता है, तो क्या कहते हैं, ये गवर्नर से भी कंसल्ट करता है और सीजे से भी कंसल्ट करता है। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलवाता है? जो सही बताएगा मैं उसके कमेंट को दिल दे दूंगा, छोटा सा दिल में। ठीक है। He can commute the sentence of any person convicted of any offense against any law operating in India। दिल तोड़ दिया भाई इसने भी। ठीक है, सभी मेरा दिल तोड़ रहे हैं आजकल। He can come very wrong। Why? क्योंकि जो आपका जो गवर्नर होता है वो स्टेट के जुरिडिक्शन के अंडर ही सजा सुनाता है और सजा माफ करता है। ठीक है, तो ये एकदम रॉन्ग। बाय द वे, आर्टिकल 161 में आता है, आर्टिकल 161 में आता है क्या? दी पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में आती है। ठीक है, क्या इसका आंसर मैंने क्या मारा था? यस, वन ओनली। ठीक है। स्टेट जो लेजिस्लेचर है, मोस्ट ऑफ द देखो, हमारे सारे स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन सबके पास सभा क्या कहते हैं, परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इट इज नॉट देयर इन एवरी स्टेट। तो ये कौन कौन से स्टेट में है उसको याद करने का तरीका क्या है? कुंभट, कुंभट। ठीक है, के फॉर कर्नाटका, यू फॉर यूपी, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड टी फॉर तमिलनाडु, नहीं तेलंगाना। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में मुझे यही दिख रहा है, दिल तोड़ने वाला। दूसरा एकदम मेरे को सही दिखता हुआ और एकदम दिल जीत गया मेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सी वी ये भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है, ठीक है, झारखंड भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। Which of these bodies not participate in the election of the members of legislative council of a state? देखो, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 and 1/6। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, परिषद, उसकी मैक्सिमम सीट कितनी होगी? वो होगी 1/4 ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये PYQ है। और ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर, ओनली द ये भी CDS का क्या है? PYQ। ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अबॉलिश और इस्टेब्लिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 क्या? ये मैंने सीट्स डिवाइड, ये संविधान में भाई मेंशन है कि जब सीट्स डिवाइड होंगी तो कैसे डिवाइड होगी। 1/3 इलेक्शन होगा फ्रॉम पंचायत, फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी। 1/12 क्या होगा? 1/12 आपका कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, कॉलेज के टीचर्स। देखो, जितने पढ़ने वाले जो लोग हैं ना, उनका सबसे छोटा है। ठीक है, 1/12 ये यानी कि जो डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स ये वैल्यू छोटी है। सो सबसे छोटी वैल्यू पढ़ने वाले लोग को दी है। और 1/6 क्या है? इट इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। कुछ जो 1/6 सीट होती है उसको नॉमिनेट करता है गवर्नर। 1/12 फॉर कॉलेज प्रोफेसर्स, 1/12 फॉर टीचर, जो छात्र आप सुनते हैं उनको अपॉइंट, वो लोग इसके लिए खड़े होते हैं। और ये 1/3, 1/3 क्या कहते हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का होता है। और बाय द वे इसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो एकदम सही है, म्युनिसिपैलिटी ऑफ द स्टेट बिल्कुल करते हैं। ग्राम, दिल तोड़ दिया इसने।
ग्राम सभा नहीं, पंचायत करता है, लेकिन ग्राम सभाज इतना भी छोटे लोग को इतना हम नहीं देते हैं कि आप सीधे आप इलेक्शन में खड़े रहिए, ठीक है, मतलब वोटिंग करिए, पार्टिसिपेट करिए। सो इसका है ऑप्शन नंबर सी। हमको डज नॉट पूछा है तो ये सही है, इसीलिए गलत है। सी गलत है, इसलिए ये आंसर सही, ठीक है। Which of these bodies does not participate in the election of the members of the legislative council of a state? ये क्या दोबारा क्वेश्चन करवा रहे हो तुम मुझसे, हैं? कौन है ये जिसने पीपीटी बनाई? The legislative procedure in the state legislature when the legislative assembly disagrees to a bill originated in the council and passed by the latter, a deadlock is reached, following which the governor is bound to reserve the bill for the consideration of the president, whose decision shall। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर परिषद ने कोई बिल पास करके भेजा है असेंबली को, जो कि पावरफुल है, असेंबलीज इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन दी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे ज्यादा, ठीक है। सो इसने एक बिल भेजा है और इन्होंने क्या कर रखा है, इसको क्या कहते हैं, दे डू नॉट अग्री, जो असेंबली वाले बंदे ये अग्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नर आके वो बोलेगा कि अरे ठीक है असेंबली भाई, आप जो है इनके बिल को रिजर्व कर लो, हम प्रेसिडेंट को दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर असेंबली काउंसिल को अगर कोई बिल भेजेगी और अगर काउंसिल डिसएग्री करता है तो ये बिल वापस इनको भेज सकते हैं कि आप कंसिडर कर लो भाई दोबारा, ठीक है, और फिर वापस से हम इसको पास कर देंगे, तो ये कर सकते हैं। लेकिन इतने छोटे बच्चे, मतलब ये बाप को बिल भेज रहा है, बोल रहा है कि आप ठीक कर लो, तो ये बोलेगा हट, फाड़ के फेंक देगा बिल को वहीं पे, ठीक है। तो द बिल बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी फर्दर, ये क्या गलत, मतलब इंग्लिश गलत है। द बिल बिकम्स डेड, एकदम बिल खत्म हो जाता है, बिल लैप्सेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। स्टेट लेजिस्लेटर कैन मेक लॉज टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, वेरी रॉन्ग। डीपीएसपी ये हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है आयरलैंड से। ये कहाँ से लिया है हमने? ये और ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से डिराइव करी है? इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाय द वे आर्टिकल 35 भाई, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 35 बोलता है कि ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ओनली 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Privileges of state legislature. The privileges that belong to each house of the state collectively are: it can make rules, procedures and conducts, बिल्कुल सही। The courts are prohibited to inquire in the proceedings. The court are prohibited to inquire, बिल्कुल सही, एकदम सही है। ये पार्लियामेंट में भी ये it is equally parallel और similar in parliamentary privileges जो पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा को दिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, एमपीज के प्रिविलेजेस की, ठीक है। नो पर्सन आइदर मेंबर और एन आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड विद इन प्रिजन ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही, 1, 2 and 3। बिना लोकसभा के स्पीकर के बगैर, बिना राज्यसभा के चेयरमैन के बगैर, बिना असेंबली के स्पीकर के बगैर और बिना काउंसिल के चेयरमैन के बगैर आप किसी भी बंदे को प्रेमाइसेस में या सेशन के दौरान अरेस्ट नहीं कर सकते, चाहे उसने कुछ भी किया, ठीक है। इट इज अ लॉ। विथ रेफरेंस प्रोरोगेशन, देखो पार्लियामेंट सेशन जब चल रहे होते हैं, ठीक है, जब सेशन चल रहे होते हैं तो लोकसभा में 2-3 चीजें होती हैं, क्या? एडजर्मेंट साइने डाई और तीसरा प्रोरोगेशन। ये कौन करता है? ये स्पीकर, क्या कहते हैं, लोकसभा कह रहा हूं, स्पीकर और चेयरमैन दोनों डिसाइड करते हैं, एडजर्मेंट या एडजर्मेंट साइने डाई। प्रोरोगेशन आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब मतलब क्या होता है? एडजर्मेंट मतलब कि क्या कहते हैं, सेशन को हमने रोका है कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब क्या है, और टाइम फिक्स इसमें बताया जाता है। ये एकदम PYQ है CDS का भाई। एडजर्मेंट साइने डाई में क्या होता है, आपका जो है क्या कहते हैं, जो सेशन को रोका गया है और कब सेशन दोबारा स्टार्ट होगा ये नहीं बताया गया होता।
दैट मीन्स कि सेशन को रोका गया है फॉर आवर्स, फॉर सम मिनट्स, फॉर सम सेकंड्स और फॉर सम वीक्स। कोई फिक्स टाइम इसमें नहीं बताया गया होता, ठीक है। और प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है, पूरा सेशन ही जो है आपका वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म कर देता है पूरे सेशन को। वो पावर किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास पावर है। इन छोटे छोटे स्पीकर के पास और चेयरमैन के पास पावर नहीं होती। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जो प्रोरोगेशन क्या होता है। इट टर्मिनेट्स ओनली अ सिटिंग एंड यहां तक सही था, पर फिर से नॉट सेशन। बिल्कुल भाई, जो प्रोरोगेशन होता है वो सिटिंग और सेशन दोनों को टर्मिनेट कर देता है बाय द प्रेसिडेंट। इट इज डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ये भी गलत है, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, नॉट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स पेंडिंग बिफोर द हाउस। एकदम से अगर किसी हाउस में कोई बिल अगर पेंडिंग होगा तो बिल विल नॉट लैप्स। ये हमने क्लास में कई बार पढ़ा है। बिल लैप्स क्या होता है, देखो यार अभी बाद में पढ़ लेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। बिल लैप्स क्या होता है कि अगर मान लो ये लोकसभा, इसको याद करने का तरीका क्या है, ये है लोकसभा की जमीन और ये है राज्यसभा की जमीन, ठीक है। ये है बिल, ये खड़ा है, बिल लोकसभा में ही है, और बिल अगर डिसॉल्व हो, लोकसभा अगर डिसॉल्व होगी तो बिल यहीं पे खत्म, ठीक है। लेकिन अगर बिल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में खड़ा है और बिल डिसॉल्व हो गया, लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, तो राज्यसभा कहेगी इस बिल को जिसने पास किया था उनके वालिद ही निपट गए, लोकसभा ही निपट गया जिसने इस बिल को पास किया है। चुप हो जा, ठीक है। सो द बिल विल लैप्स यहां पे, लेकिन बिल विल नॉट लैप्स। कब लैप्स नहीं करेगा, जब लोकसभा और राज्यसभा है, बिल अभी राज्यसभा में ही है और लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, मर रही है और वो बन रही है, तो अभी राज्यसभा में ही है बिल, ठीक है। सो बिल विल नॉट लैप्स। और अगर राज्यसभा ने बिल पास किया है, लोकसभा में है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, तो तब भी बिल विल नॉट लैप्स, ठीक है। तब बिल विल लैप्स, सॉरी, तब यहाँ पे बिल विल लैप्स। बिल यहाँ पे अगर है तो लोकसभा बिल को लेके डूब जाएगा। अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने बिल पास कर दिया है और प्रेसिडेंट के पास असेंट होने गया है, ठीक है, अभी प्रेसिडेंट के पास कहाँ गया है, असेंट होने के लिए गया है, तभी भी बिल लैप्स नहीं होगा, भले लोकसभा डिसॉल्व हो जाए। तो ये जितने भी केसेस हमने भाई पढ़े, इसमें बिल्स की प्रोरोगेशन की कोई बात नहीं है, तो इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स पेंडिंग बिफोर द हाउसेस। तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। ये क्या है, अच्छा क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है। ये गलत दिया होगा, इसमें आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। सो गाइज लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द कोर्स। हमारा CDS का, NDA का, ACC का और MNS के फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें CDS NDA की हमारे पास एक्सपर्टीज है। आई हैव क्वालिफाइड CDS 4 times, CAPF once and AFCAT in my all 5 attempts, ठीक है, with 190+ marks in all my attempts। CDS IMA हमेशा क्वालिफाई किया है। OTA की अब एज बची है तो अब OTA क्वालिफाई करता हूँ। सो लाइक आई हैव बीन टीचिंग फॉर CDS since 1 year, ठीक है, and many of our students have qualified these exams in CDS, in previous exams। अभी जो रिजल्ट आया है लाइक CDS में हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। NDA तो एक हमारा हर्ष है, ही इज़ क्वालिफाइड। CDS के लिए IMA OTA उसने क्वालिफाई किया विद ग्रेटर मार्क्स, ठीक है, पृथ्वी एंड वेरी सो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। AFCAT भी बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया। फॉर SSB हमारे पास जेंटलमैन कैडेट अविनाश सिंह ex-NDA है जो बैचेस चलाएंगे, ठीक है। ही विल कंडक्ट प्रॉपर प्रैक्टिस सेशंस फॉर PPTT, लेक्चरेट एंड क्या कहते हैं GD वगैरह के लिए। और बाय द वे ही विल ऑल्सो हेल्प यू इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू यू एट अ वेरी लेस प्राइस, ठीक है, दैट इज 2,999 एट स्पेशल ऑफर। अदरवाइज जल्दी से आप एडमिशन ले लो और इट विल बी 3,999 सून, ठीक है। सो बाय द वे आई विल ट्राई टू टॉक टू माई टीम कि हम इस ऑफर को थोड़ा और एक्सटेंड करें, बट I can just only try, ठीक है। So that was all guys, I hope that you like this session। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भाई बताना, ठीक है। रात के 3 बजे मैं सेशन ले रहा हूँ। सो जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय श्री राम।